So, welcome everyone for our first physical meet to get back to VCT. With the lockdown, we had all moved to online, and since then we haven't met physically, and that's what everyone was missing. And the charge I could see was reducing, so I said, okay, recharge is to meet face to face in Panchamahabhuta, and therefore I said, let's begin with the Panchamahabhuta. This Vibhuti is kind of blessed at Isha Yoga Center during the session of Panchamahabhut Kriya. So I said nothing better than this to get started with. So this is a regular feature over there, it seems. So I was lucky to have got one, and this was also done online. This was during that time. So they sent the material home and they guided you online how to go about the Kriya and chanted whatever has to be done. So Manka, this is what we do in yoga also, and that is our purpose of VCT. Yes, we started this technique as emotional freedom technique. Very true. In fact, some of you who have come here physically and learned from me, it was learning emotional freedom technique. Yes, and that time also, from the very first day, I knew that this is the technique to be used for practice of Klishta Vritti changing to Aklishta Vritti, and removing the Vitarkas that we talk of in Yama and Niyama to change them to the positive Yama Niyama. For you may not know what these 3-4 terms are. Nothing very big. ये योगा वाले हैं इसलिए उनको टेक्निकल टर्म में बता दिया. But क्लिष्ट अक्लिष्ट means negative positive. क्लिष्ट is negative. To change it into positive is अक्लिष्ट. Of course there are some technicalities to it, but by and large it means that. And Yama Niyama are code of conduct for any normal human being that Patanjali has given in the Yoga Sutra. So he has listed out 10 ethical values like ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha, then shauch, santosh, tapas, svadhyaya, ishwar pranidhan, which you will identify with Jainism. Right? So it is very similar. The ethical values are there. So if you are faced with anything unethical, using this technique, I knew we can move to ethical. Because anything unethical happens, along with that there's a negative feeling also. The day I learned the technique, I went and reported to Dr. Jaydev. Actually, I learned the technique also because he had once told me, find out what is happening in terms of emotional management in today's world. Modern method kya hai? So I was in search for it. When I found it, I went, attended a 2-day program, learned I am certified for having to teach emotional freedom technique. So that's what I started. And when I saw the technique, I saw it is very clearly to be used over here. I tried teaching yoga teachers कि तुम लोग यम नियम सिखाते हो and you find that change does not really happen. तो उस चेंज को करने के लिए यदि तुम ये टेक्निक यूज़ करो, बिकॉज आई स्टार्टेड यूजिंग इट दैट वे एंड आई एक्चुअली सॉ द चेंज. जो एक काम मुझे डॉक्टर जयदेव ने दिया था, जिसको करते करते मुझे अपने टू चेंज माई सेल्फ, इट टुक मी 5 years and 7 years टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज. आई फाउंड आई कुड डू इट इन फ्यू डेज. यानी आज किया, आज थोड़ा चेंज हो गया, टुमारो व्हेन आई एम डूइंग इट उसका इंटेंसिटी और कम हो रहा है नेगेटिव का, और करते करते 3-4 दिन में आई एम एबल टू शिफ्ट टू द पॉजिटिव. यानी वो 2 मिनट में 5 मिनट में टेक्निक करने के बाद में माइंड चेंज हो रहा है. एंड वेरी सून व्हाट आई अचीव्ड इन 5-7 years, विद इन अ मंथ्स टाइम आई एक्चुअली फाउंड कि अब वो भावना ही नहीं आ रही है नेगेटिव वाली. इन दैट सेम सिचुएशन आई एम एबल टू फील पॉजिटिव. This is exactly from क्लिष्ट वृत्ति टू अक्लिष्ट वृत्ति. यानी कि मेरे को जो आदतन नेगेटिव थॉट आता था,
वो अब नहीं आ रहा है। उसी सिचुएशन में अब पॉजिटिव थॉट आ रहा है। तो जब मैं वो दूसरों के लिए कर पाती हूँ, तो तभी तो खैर मैं स्कूल में टीचिंग करती थी, तो फुल टाइम जॉब था, उसके बाद मैं ट्यूशन्स के अंदर रहती थी, या फिर योगा इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई मेरा क्लास लेने का होता था, तो फुल डे ऑक्यूपाइड ही होती थी। तो ये तो मैं अपने लिए ही करती थी। बीच बीच में किसी ने कुछ बोल दिया कि किसको प्रॉब्लम है, कैन आई हेल्प यू विद दिस, ऐसे करके करा देने का उनको हेल्प हो जाती थी। तो उस ढंग से किया। ऑफ कोर्स 2 चीज़ें शुरू हो गई थी। स्कूल में मैं जहाँ टीचर थी, तो कभी किसी स्टूडेंट को ऐसा कुछ इश्यू हुआ तो ऐसा करा के उनको उसमें से बाहर निकाल लिया। जैसे कभी कोई बच्चा रोने लग गया किसी बात से। एक बार मेरे को याद है, एक बच्ची घर नहीं जाऊंगी, 1 बजे 7 बजे कुछ स्कूल ख़त्म होता था, 2 बजे तक वो क्लासरूम में बैठी है। आखिर प्यून जब क्लीनिंग करने जा रहा है तो उसको लगा चली आएगी थोड़ी देर में वगैरह, पौना घंटा बाद में भी वो वहीं बैठी हुई रो रही है। तो उसने आके स्टाफ रूम में हमको बताया। मैं असल में रुक जाती थी क्योंकि स्कूल मेरा ब्रिज कैंडी पे, बाकी सारे टीचर्स क्या करते थे, अपना करेक्शन का बुक्स लेके घर चले जाते थे। अब मेरे को इधर से इधर कैरी करने के लिए नहीं होता था, तो मैं उधर बैठ के मेरा करेक्शन और प्लानिंग वर्क ख़त्म करके फिर आती थी। तो 1 घंटा 1.5 घंटा मैं होती थी यूजुअली। तो मेरे को आके उसने स्टाफ रूम में बताया। और भी कुछ लोग होते थे जिनका काम ही होता था, क्योंकि स्कूल शिफ्ट में चलता था, तो सेकंड शिफ्ट के कुछ स्टाफ वगैरह होते थे। तो आई वाज़न्ट द ओनली वन। लेकिन मैंने कहा सेकेंडरी की बच्ची है, मैं जाके देखूं, रोए जा रही है, घर क्यों नहीं जा रही, कि नहीं मैं घर जाऊंगी तो मम्मी मारेगी। लकीली काउंसलर थी, तो मैंने उसको बुला के पूछा। मैंने कहा यू नो अबाउट दिस केस? बोलती नो, आई एम नॉट सीन दिस गर्ल बिफोर। तो ठीक है, मैंने कहा अब उससे उसकी डायरी लेके उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाला, और मैंने कहा कि मैं बात करके देखूं मम्मी को। नहीं, मम्मी को मत बुलाना। तो फाइन, द काउंसलर वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वो जाके प्रिंसिपल के पास में बैठी कि आपको पता है क्या इस बच्ची के बारे में, क्यों आया है, कोई केस कभी पहले नहीं आया है। ठीक है, तो हमने ऑफिस से उनकी मम्मी से, वो काउंसलर, प्रिंसिपल और उसकी मम्मी वगैरह का उनके बात वहाँ चलती रही। मैं इसको यहाँ बिज़ी रखी और मेरा टेक्निक काम आया। उसको शांत किया। इतनी देर में मेरे को फ़ोन आया मेरी फ्रेंड का, इंटरकॉम होते ही आजकल स्कूलों में, कि इसको लेके नीचे आओ। तो उस बहाने से मैंने कहा चलो अपन नीचे चलते हैं, विल हैव समथिंग। नीचे कैंटीन भी था। मैंने कहा यू हैवंट ईटन, नो, यू वुड गो होम एंड हैव लंच यूजुअली। चलो, मैंने कहा नो मैम आई, मैंने कहा दैट्स अप टू मी, चलो। तो उधर उसको कुछ खिलाया पिलाया। इतनी देर में प्रिंसिपल उसकी मम्मी के साथ में अपने ऑफिस में से बाहर आई, क्योंकि इसको तो वहाँ ले जाना नामुमकिन था, किसी के पास में नहीं जाना है। तो मैंने शायद वो बीसीटी करा के उसको शांत किया था, तो शायद दैट फेथ डेवलप हुआ होगा। एनी विच वे वी डेल्ट विद दैट केस। फिर जब मम्मी को देखा तब तो लिपट के रोने लगी। मम्मी है आखिर ना। फिर सब मालूम पड़ा कुछ नहीं, कभी मम्मी ने हाथ नहीं उठाया उस बच्ची के ऊपर। शी वॉज ऑल इमेजिनिंग इन हर हेड हैविंग टू हियर अदर्स इन द क्लास। किसी ने बताया होगा, कोई फ्रेंड ने, कि उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ है? कुछ भी नहीं। इतनी प्रेमालु है उसकी माँ, कोई सोच ही नहीं सकता कि वो मार सकती है। लेकिन मार्क्स कम आए थे। इंग्लिश का टेस्ट पेपर मिला था, तो उसकी मम्मी ने बोला था अच्छी तैयारी की है, इस बार 10 on 10 आने चाहिए, लेकिन 7 on 10 आए थे। तो घर जाऊंगी तो मम्मी ने बोला था 10 on 10 आने चाहिए, मेरा 10 on 10 नहीं आया है तो मम्मी मारेगी। बोलो, ऑल इन द माइंड। सो वी पीपल, अब ये तो बच्ची का था इसलिए हमारे को समझ में आ रहा है, हम लोग यही करते हैं। ये मैंने समझा। तो माइंड में जो भी हो रहा है उसको हम योग में कहते हैं वृत्ति। तो जब मैं योगा वालों को जब ये करवा रही थी, योगा इंस्टीट्यूट में भी ऐसे कोई भी मिल जाता था, और मैंने क्या किया था, ये लोग मुझे बुलाते थे 7 डे कैंपर्स को काउंसलिंग करने के लिए। अपने सिस्टम है वहाँ पर, जो 7 दिन वहाँ पर रहकर कोर्स करते हैं, फर्स्ट बेसिक कोर्स जो है इंट्रोडक्टरी। तो उनको एक काउंसलर से किसी न किसी से बात कराते हैं शुरू के 2-3 दिनों के अंदर, ताकि यदि कुछ ज़्यादा इश्यू, क्योंकि 7 दिन घर से बाहर रहना कई लोगों के लिए नया चीज़ होता है ना, दे मे नॉट हैव डन दैट बिफोर। तो उनकी काउंसलिंग करने के लिए मैं जाती थी
संडे के दिन 4-5 लोग जो भी होते थे मिल के आती थी। और उनको यदि कोई, ज़्यादातर वो लोग मेरे को ऐसे लोग देते थे जो भाग जाना चाहते थे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती थी उनके, यू वांट टू रन अवे, आई विल टैप इवन दो आई वांट टू रन अवे। और वो एक टैपिंग के बाद में दे वर ऑल राइट एंड दे यूज्ड टू बी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास आफ्टर दैट। कभी नहीं गए। हाँ, वो एक्चुअली जो भी होता था वो बाहर निकल के आ जाता था, या तो वो बोल देते थे या मैं दोबारा टैपिंग कुछ करवा देती थी, तो शांत होके वो पूरा कोर्स अटेंड करके जाते थे। तो मैंने कहा, और आई यूज्ड टू शेयर दिस विथ माय अदर कॉलीग्स इन योगा, particularly teachers now because I was already teaching and all that. हाँ ठीक है, खुद के लिए कभी यूज़ हुआ तो ले लेते थे, लेकिन मैं उनको बोलूँ कि आओ सिखाती हूँ। बल्कि एक बार तो इंस्टीट्यूट के अंदर अनाउंस करके फेसबुक पे एडवर्टाइज वगैरह भी किया इन लोगों ने, और के अतुल सर के भी कोर्सेज चल रहे थे। ही ऑल्सो ट्राइड प्रमोटिंग इट बिकॉज उसका जो कोर्स चलता था उसमें एक सेक्शन होता था EFT का, तो आई यूज्ड टू गो टू टेक दैट सेक्शन। तो वो जो 30-25 लोग होते थे उनको सिखाया। लेकिन टिपिकली जो योगा वाले हैं, इमोशनल का वी डोंट नीड। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के नाम से नहीं आना है। तो मैंने कहा इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स इन योर माइंड ना, वो चेंज हो रहा है ना। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू टू मेक द नेम अपीलिंग टू द, क्योंकि काम तो यम नियम के ऊपर हो रहा है, वो तो योगा का टेक्निक ही हुआ ना फिर। तो मैंने कहा ये वॉट एवर इज हैपनिंग इन द माइंड इज वृत्ति, सो इट इज़ वृत्ति चेंजिंग टेक्निक, नॉट इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इमोशनल फ्रीडम में एक और प्रॉब्लम आया, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम फ्री फ्रॉम इमोशंस। उनको लगता था वो लोग इमोशन फ्री हो जाएंगे, यानी इमोशंस आएंगे ही नहीं उनको, ऐसा डर लगता था बहुत लोगों को, इसलिए नहीं आते थे। तो चलो वो एक हर्डल जब क्रॉस किया, इसलिए वृत्ति चेंजिंग टेक्निक। और मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि हम जितने भी रिलीजन्स की बात कर लो, स्पिरिचुअल पाथ की बात कर लो, जैनिज़्म भी है तो बुद्धिज़्म भी है, तो जो भी तुम, सब में एथिक्स सबसे पहले है। एथिकल लाइफ होगी तो ही तुम व्यवहारिक जगत में भी, डे टू डे लाइफ बिहेवियर में भी, थिंकिंग में भी, फीलिंग में भी कंट्रोल में रहोगे, बैलेंस रहोगे। तो वो बैलेंस लाने के लिए मुझे लगा ये इतना क्विक तरीका तो कोई भी नहीं है। क्योंकि जब पहले मैंने प्रतिपक्ष भावना के बारे में सुना था, जब मैं कोर्स कर रही थी, वो बोलते हैं जब विपर्य ये वितर्क आए मन में तो तुम ऑपोजिट सोचो, यानी हिंसा की भावना आ रही है तो तुम प्रेम या ऐसी भावना मन में लाओ। मैंने कहा यार मेरा मन कर रहा है सामने वाले को थप्पड़ मारूं, गुस्सा आ रहा है कि उसने ऐसा गलत काम किया, हिंसा की भावना आ रही है। अब अचानक से उसमें से निकल के मैं प्रेम की भावना कैसे लाऊं? उल्टा कैसे होएगा? मन के ऊपर इतना वश तो है नहीं ना। भगवद गीता में भी बोला है मन बहुत चंचल है, बहुत मुश्किल से वश में आता है। तो मैंने कहा मैं तो अभी सीख रही हूँ। तो ऐसा करके मुझे लगा कि इतना कठिन काम, मैं जिसको कुछ ज़्यादा आता करता नहीं है, लेकिन इतनी सी टेक्निक से आई एम एबल टू चेंज माई सेल्फ। और लिटरली वो इन द फेस ऑफ दैट एंगर आई हैव डन इट। एज अ टीचर आई यूज्ड टू बी टू मच फॉर बीइंग ट्रूथफुल। एक बच्चा क्लास में होमवर्क करके नहीं आया और उसने मेरे को झूठ बोला है, और जब मैं चेक कर रही हूँ तो देखती हूँ उसने होमवर्क नहीं किया और उसने बोला किया। खत्म वो क्लास। I couldn't bear it. I not only not bear it, I actually thought it is my duty at that point of time to give a long lecture on Satya. और बच्चे लोग ने क्या करना शुरू किया था, उनको फ्री पीरियड चाहिए होता था, वो ये करते थे। हाँ, exactly. And then they were happy.
कि अभी कुछ नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आज जो होमवर्क भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा पीरियड तो इस लेक्चर में गया कि झूठ कैसे बोला. So when I realized that, I said, this is not the way. And in any case मैं इतनी बार इनको बोल चुकी हूँ, फिर भी वो लोग यही कर रहे हैं, because they didn't think it was wrong. उनके लिए तो एक अच्छा था ना, फ्री पीरियड मिल रहा है, तो कोई ना कोई एक बकरा बन जाता था. I have been fortunate to receive showers of the answer many times. तो ये चलता रहता था. And then I decided I have to change my strategy. Yes, सत्य सिखाना है, लेकिन योग ये भी तो बोलते हैं ना, अहिंसा पहले, और अहिंसा दूसरों के बजाय पहले खुद पे. तो खुद पहले अहिंसा की स्टेट में आओ. ऑफ कोर्स वो जो मेरा स्कूल टाइम में जो गुस्सा था, जहाँ मैं सिखाना शुरू किया था, वहाँ से तो अभी मैं कहूँगी 98% गया, लेकिन ये 2% अभी भी अटका हुआ है. वो पता नहीं कब जाएगा. मेरे को पता है ऐसे, यानी मैं सिचुएशन क्या होनी चाहिए जिसमें वो जाएगा, वो मेरे को पता है, लेकिन वो सिचुएशन मुझे बहुत मेहनत करके क्रिएट करनी पड़ेगी. तो ये उधर उतने पुराने से आज एकदम रिसेंट पे आ जाती हूँ. ये ऐप लेने का मेरा एक और भी मतलब था कि इतना सारा सब मुझे लगता है कि मैं बार बार देती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, ये करो, कोई करता नहीं है. थोड़े बहुत करते हैं, जैसे कोई करता नहीं है नहीं बोल सकती. इतने लोग जो सामने बैठे हो, तुम लोग कर रहे हो, इसलिए हो यहाँ पर, है ना. और कितने लोगों की और इच्छा थी जो नहीं आ पाए हैं, उनकी भी इच्छा है अपने आप को बदलने की. तो ऐसे जो थोड़े भी हैं, पृथ्वी हमेशा थोड़े से सात्विक लोगों के कंधे पर ही टिकी होती है. लार्ज मेजॉरिटी विल बी द वे दे आर. ये समझ आ गई है. तो मैं जो दुनिया को बदलने के लिए निकली थी वो नहीं करना चाहती अभी. और कौन कितना बदलेगा ये भी समझ में आ गया कि उसके कर्म हैं. ये सारा सब कर करके आया, क्योंकि मन शांत हुआ तो वृत्ति बदली, और वो बदली हुई वृत्ति के संस्कार जब बने तो वो पॉजिटिव संस्कार से मैं वो जो ड्रॉप ऑफ द हैट के ऊपर चिल्लाना, गुस्सा करना था, वो अभी, क्योंकि मेरे को बहुत काम आता था, थोड़ा सा चिल्ला के बोलो तो सामने वाला सुन लेता था, काम तुरंत कर देता था. तो शायद वो भी एक लालच है कभी कभी. लेकिन अभी आई हैव लर्नड ऑल्सो टू एक्ट. I don't have to get angry, I can act angry. और ये भी डॉक्टर जयदेव से सीखा. बहुत कैंप्स किए मैंने योगा इंस्टीट्यूट में, तो इस प्रकार के छोटे छोटे गाइडेंस मिलते रहते थे कि कैंप के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस आदमी को कैसे टैकल करना, तो डॉक्टर से पूछ लेने का. क्योंकि कैंप तो योगा इंस्टीट्यूट का हो रहा है ना, जो भी मैं कर रही हूँ नाम तो योगा इंस्टीट्यूट का होगा, तो आई हैव टू बिहेव एज पर द योगा इंस्टीट्यूट नॉर्म्स. तो वहाँ से तुरंत गाइडेंस मिल जाता था. वो आज तक मेरे को काम आ रहा है. तो जितना भी कुछ वहाँ पर किया है सेवा, तो वो सेवा मैंने अपनी की है, नॉट ऑफ द इंस्टीट्यूट, बिकॉज आई हैव लर्न सो मच एंड आई हैव अंडरगॉन दैट चेंज. सो थैंक्स टू गॉड. तो अब जैसे ये आके पैर छुएगा, तो वो पैर मेरे नहीं छू रहा है, वो डॉक्टर जयदेव के छू रहा है मेरे लिए. वो मेरे नहीं है, because it goes straight there. I have seen that a lot of people जिन्होंने मिले नहीं हैं उनको, योगेंद्र जी को या डॉक्टर जयदेव को, जब वो कभी कभी कोई बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं वो ऐसे, तो अब ठीक है, हर एक को नहीं बता सकती, इसको तो खैर पता है, लेकिन जो आज के ज़माने के हैं उनको बताना भी मुश्किल है. उतना धीरज नहीं होता, नहीं हमारे लिए तो तुम ही भगवान हो, ठीक है, पास ऑन. और वो कनेक्शन आज भी है. डॉक्टर जयदेव को भी गए 5 साल 6 साल हो गए एग्जैक्टली. इसीलिए लाइट लगाई है आज कि इट्स द इल्यूमिनेशन दैट कम्स फ्रॉम देयर. तो ये जर्नी जो हमने तय की है, अब भले ही वो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, उसमें थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया है उसको मेरे इस काम के लिए सुटेबल बनाने के लिए. तो वृत्ति चेंजिंग टेक्निक ही मैं बोलती हूँ, क्योंकि उद्देश्य मेरा यही है कि
कोई भी स्पिरिचुअल पाथ पे यदि जाना हो, एनी स्पिरिचुअल पाथ यू टेक, बाय वे ऑफ रिलीजन या बाय वे ऑफ पर्सनल ग्रोथ, कुछ मोटिवेशनल प्रोग्राम ज्वाइन करके अलग अलग तरीके से लोग ट्राई करते हैं, लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, ये थोड़ा मैंने मेरा एजुकेशन वाली फील्ड से सीखा, मॉडर्न लैंग्वेज में उसको समझाने के लिए, और भगवत गीता में भी ये बात कही है। भगवत गीता में टर्म यूज़ किया है उपकरण, मन वचन काया, मनसा वाचा काया, और हमारे एजुकेशन वाली फील्ड में 3 लेवल्स ऑफ लर्निंग बोलते हैं उसको, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। और हालांकि हमको सिखाया तो बहुत गया था एजुकेशन साइकोलॉजी में, लेकिन जब हम बाकायदा स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं, करवाते हैं, तो ख़ास इस्तेमाल नहीं देखा मैंने। इसलिए योगा इंस्टीट्यूट में आने के बाद में जब मैंने ये सीखा, देखा, तो मुझे लगा कि ज़रूरी है इमोशंस के ऊपर काम करने का, और योगा इमोशंस को बिल्कुल सही देखता है, और इसलिए मैंने जैनिज़्म का खास नाम लिया, क्योंकि मैं देखती हूँ यम तो जो हमारे योग में है वही जैनिज़्म में, और अहिंसा का तो जैनिज़्म के लिए वैसे भी फेमस है, और अहिंसा में ही बाकी के यम समाये हुए हैं, ऐसा पतंजलि भी कहते हैं। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट। आजकल मैं बुद्धिज़्म के ऊपर किताब पढ़ रही हूँ, वहाँ पर भी वही बात कही है, तो बहुत डिटेल में उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया है। मुझे बहुत और भी, यानी जब जब ये देखती हूँ तो और कन्विंस हो रही हूँ। और एक संस्कृत स्कॉलर के साथ में इंटरेक्शन हो रहा था, जिनको कि सारी फिलॉसफीज जो अपने भारतीय दर्शन है, न्याय बोलो, वैशेषिक बोलो, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा दोनों, और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड चारवाक, सारी फिलॉसफीज उनको उसकी समझ है। तो वो कंपैरिजन करके बताते थे कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में इसमें क्या कहा है, इसमें क्या कहा है, इसमें क्या कहा। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई कि सभी में इमोशनल मैनेजमेंट पहले आता है। और अपनी इंस्टीट्यूट की एक किताब है गाइड टू योगा मेडिटेशन, उसके अंदर योगेंद्र जी ने अष्टांग योग पूरा डिस्क्राइब किया है। तो यम नियम की जब बात, यम की बात जब शुरू करते हैं, उससे पहले ही उन्होंने कह दिया है कि यम और नियम आर फॉर इमोशनल बैलेंस, इमोशनल मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज इट फ्यूअल्स योर एक्शंस। तुम जो भी कर रहे हो वो करोगे जो तुम्हारा मन करता है। अब जानकारी तो बहुत होती है, समझ तो बहुत होती है। एक टिपिकली तुमने ये एग्जांपल तो मेरे से पहले सुना ही होगा, क्योंकि मैं बार बार यूज़ करती हूँ कि सिगरेट पीने वाला वो जब सिगरेट का पैकेट खरीदता है, उसके ऊपर भी लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। वो पढ़ता है उसको, फिर भी उसको वो खरीदता है, और फिर भी वो स्मोकिंग करता है। यानी अक्ल तो है, जानकारी है, समझ है, कॉग्निटिव में मालूम है, लेकिन मन नहीं मान रहा। मन कर रहा है कि मेरे सिगरेट पीऊँगा तो ही मेरे को शांति मिलेगी, तो वो एक्शन उसका कैसे डायरेक्टेड है? मन से। मीन्स तुम्हारा मन तुम्हारे एक्शन को बल देता है, इट गिव्स यू द फोर्स टू पुट इट इनटू एक्शन। वृत्ति क्या है? अब तुम कहोगे कि वो सिगरेट पीने का काम भी तो माइंड डायरेक्ट करता है ना, उसके बिना कैसे होएगा, है ना? तो वो भी तो वृत्ति है ना। नहीं पीना चाहिए ये भी एक माइंड में है, और वो पीना है वो भी माइंड में ही है। तो वृत्ति में दोनों चीज़ें। तो इसको कैसे मैनेज करने का? वृत्ति से। उसके ऊपर तुम वीसीटी करना शुरू करो, करते करते आदत छूट जाएगी। बाय चांस आनंद क्लिनिक में एक केस आया था मेरे पास में, ऐसा भी यंग गर्ल 2022 समथिंग was heavily into smoking. 24/7 बोलो तो वो स्मोकिंग कर सकती है। एंड when she came to me, she didn't come for that. आई थी किसी और कारण से, लेकिन she found whatever she was doing with me
was affecting her habit of smoking. So then one day she opened up to me, can you help me with this because I find it is affecting me. Affecting means like She is in not what way? feeling हाँ कि कभी कभी there was time when for long time she wasn't smoking in the day. वो होने लगा तो उसको लगा कि भाई डायरेक्टली उसकी हेल्प लूँगी तो एंड शी ओवरकेम दैट. आई लाइक मैंने जान के वो केस नहीं लिया उस ढंग से. यदि ऐसा बोला होता तो मैं बोलती थी नो आई डोंट नो. राइट. तो ऐसा है कि यानी कि कितना इन ऋषियों ने जो जिन्होंने भी ये दर्शन हमारे को दिए हैं कितना गहराई से मनुष्य को जाना होगा कि सबसे पहले ये जो फोर्स है तुम्हारे अंदर इट्स लाइक फायर नो. इट बर्न्स अस अवे लाइक फॉरेस्ट फायर. और गैस में लगा लो ऐसे लाइट जला लो तो रोशनी भी देगा खाना भी पका देगा. सेम फायर है ना. तो कैसे हम उसका यूज़ करते हैं उसके ऊपर. तो मैंने कहा चलो दिया जलाते हैं और अपने आप के अंदर ये जोत लगाते हैं. इसको यदि ठंडी हो गई है तो आज वापस उसको जागरण करते हैं और काम चालू रहना चाहिए. और वैसे भी खैर डॉक्टर की भाषा में कहूँ तो ही सेड दैट द स्प्रिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी विल नेवर ड्राई. इट मे बी रिड्यूस टू अ ट्रिकल बट इट विल नेवर ड्राई अप. जो कि हम हमारे देख ही रहे हैं कि कितना बुरी तरह से सनातन धर्म को नष्ट करने का सारा प्रयास हुआ. लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ट्रिकल आज बहने लगा है नदियों की तरह. समुद्र कब बन जाएगा पता नहीं. है कि नहीं. वो हमने अपने जीवन में देखा. सबको ये मौका नहीं मिलेगा शायद देखने का है ना. तो इसलिए मेरी आशा तो कभी नहीं छूटती है. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक. कुछ साल पिछले मेरे ऐसे गए कि पहले तो ये अब मैं बोलूँगी बहाना था क्या या नेचर का बहाना था मेरे को इस सब से कम 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 करके कम कर देने का. तो ठीक है जैसे मैं फ़िज़िकल मीटिंग लेती थी फिर थोड़ा ऑनलाइन लेती थी. अब जब से ऑफिसेज वापस जब खुल गए चालू हो गए तो मेरा ऑनलाइन का भी अटेंडेंस कम होने लगा वगैरह वगैरह वगैरह. और फिर आई ऑल्सो वेंट थ्रू वट एवर प्रोसेस. मम्मी डैडी के जाने से और था जो भी टर्मोइल वगैरह उसको सेटल कराने में. बट आई थिंक आई हैव ग्रोन थ्रू दैट प्रोसेस. तो अब मुझे लगा कि अब मुझे इसको वापस रिवाइव करके हर एक को जिम्मेदारी दे दे के छोड़ देने का है. सो आई कैन देन फर्दर गो फ्रॉम माई प्रोसेस ग्रो फर्दर इनसाइड एंड ग्रोथ. तो आज जो मैंने कोशिश की है रिवाइव करने की सबको बुलाया है इसीलिए कि इस जोत को बुझने मत देना. जलाए रखो और आगे चालू रखो. जब कभी भी ऐसा लगे कि भाई जोत कम हो रही है तो बड़ा दीपक रहता ही है ना आसपास तो टच में आ जाओ वापस जला लो है ना. तो छोटी छोटी टी लाइट्स हैं वो बुझ जाएगी. बड़ा दीपक है वो थोड़ा ज़्यादा देर चलता रहेगा. तो इसलिए सिंबॉलिक. तो हम एक बड़े दीपक से अपनी जोत जला लें और उसको जागृत रखें. वो छोटी वाली कब बड़ी बन जाए पता नहीं चलेगा. तो हमें सभी को अपने अपने दीप जलाए रखना है और इसको आगे जोत से जोत जलाते चलो. तो आगे इसको प्रसारित करते रहना है क्योंकि भले तुम कोई भी रास्ता अपना लो फाइनली तो हम इस जीवन में अपने लिए ही आए. यदि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे. तो इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ. और अपने सेल्फ में हम अपने आप को ये पंचभूत का शरीर ही जानते हैं. तो इसलिए पंचभूत से शुरू करते हैं. जहाँ हम हैं वहाँ से हमारे बिहेवियर समझते हैं. बिहेवियर से शुरू करते हैं. हमारी भावनाओं को हम समझते हैं तो भावनाओं से तो काम VCT से होता ही होता है. सोच बदलती ही बदलती है जो कि करीबन सभी को हमारे को अनुभव है. लेकिन हर बार हमें याद नहीं आता इसको इस्तेमाल करना. तो आज से ऐसा कहूँगी मैं कि इस ऐप के ज़रिए सांख्य योगा एजुकेटर के ज़रिए हर बार इस चीज़ को याद दिलाने का मेरा प्रयास रहेगा.
क्योंकि यदि मैंने एक दूसरा दीपक जलाया है तो मैं भी चाहूँगी कि वो दीपक टिमटिमाता तो रहे, है ना। जब मौका मिले जगमगाए भी, लेकिन वो चालू रहना चाहिए। उसको रीफ्यूलिंग करना ज़रूरी है। और वो हम हैं ही ना, त्रिगुणात्मक हैं हम। कभी सात्विक हो जाते हैं, कभी राजसिक हो जाते हैं, तामसिक भी हो जाते हैं। तो तामसिक जब हो जाते हैं तो उसके अंदर रजस चाहिए। तो वो भी डालना, जहाँ से आया है वहीं से चाहिएगा। तभी हम सात्विक हो पाएंगे। तो प्रयास तुम लोगों का भी जारी है। तुम लोगों ने मेहनत की, इतनी टाइम निकाला, आए हो, बहुत 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 धन्यवाद। सो दिस वॉज, इवन इफ इट वॉज लॉन्ग, बट माई वेलकम टू ऑल ऑफ यू to come and reignite yourself for changing the vritti from negative to positive. And that's the purpose of yoga. योग तो बोलता है वृत्ति निरोध, लेकिन जब तक वृत्ति हमारे हाथ में नहीं आएगी, निरोध कैसे करेंगे? तो हाथ में लाने का मतलब है पहले उसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना। हाँ, ये एक चीज़ किसी ने एक दिन मेरे को बात कर रहे थे, तो उनको समझाते हुए मेरे को ख्याल भी आई कि लेकिन हम लोग चेंज हो जाते हैं, लेकिन वापस क्यों गिर जाते हैं? अभी काफ़ी दिन तक मैं ये गलत नहीं कर रही थी, एक दिन ये भी कंप्लेन कर रही थी, लेकिन वो सब छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? तो मैंने कहा हम सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुणों से बने हैं। तीनों गुण आपस में कभी भी अलग नहीं हो सकते ना। फिर सांख्य में एक कॉन्सेप्ट है कि अहंकार में सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों होते हैं, और तामसिक अहंकार से ये पंचमहाभूत बने हैं, जिसका हमारा शरीर बना है। तो यानी बेसिकली वो तामसिक है ना, तो तुम उसके ऊपर काम करना छोड़ दोगे तो वो गिरेगा ही ना। तमस इज डार्क, हेवी, ऑब्स्ट्रक्टिंग, तो फिर गिरोगे ही ना, क्योंकि उसका नेचर ही तामसिक है, स्टेशनरी है। इसलिए गिरना आसान है। तो फिर सीधा उसको निकाली क्यों नहीं देने का? मैंने कहा निकालने के लिए तो फिर सात्विक भी तो रहेंगे, तो तमस भी साथ में रहेगा। क्या होता है? सात्विक इज लाइट, बॉयंट। कुछ भी जो लाइट है उसको छोड़ना आसान होता है। तो अल्टीमेटली सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों का त्याग करना है, लेकिन सत्व से त्याग करना आसान होता है। तमस में से इतना नीचे से उसको निकाल के ऊपर तक लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर हिमालय पे पहुंच गए तो बाद में आकाश से चलना आसान है ना। लेकिन नीचे से वहाँ तक जाने में रॉकेट छोड़ते हैं तो कितना फ्यूल जाता है। तो ये वैसा ही है। तो थोड़ा ऊपर चढ़ जाओ ना, तो फिजिकली हिमालय पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये करते रहो, यहाँ से हिमालय में पहुँच जाएंगे। और सच में मेडिटेटिव इफेक्ट होता है। यदि रोज़ करो तो उसका असर अलग ही है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी भले चाहे जितनी बिजी ज़िंदगी हो, 2 मिनट लगता है कोई भी एक छोटी सी वीसीटी करने के लिए। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर एक वीसीटी कम से कम रोज करो और मेरे से टच में रहो। तो कहीं मुझे लगेगा कि टिमटिमा कम हो रहा है तो मैं थोड़ी सी रजस और दे दूँगी। यस, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही सेक्रेड चीज़ हो गई है। और अब तो मुझे बहुत और ज़्यादा लगने लगा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, योग कितना पॉपुलर हो गया है। एंशिएंट एंड मॉडर्न का फ्यूजन, इट्स बिकमिंग द न्यू थिंग। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। वीसीटी क्या है? इट इज़ यूजिंग अ मॉडर्न टेक्निक फॉर making the ancient wisdom real and alive for us. Yes. So if you are also of the same thinking, so become comfortable with this and freely use VCT for anything you want to achieve at any level in your life. I'm sure all of you have your own personal experiences that you can share. मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोगों की बारी।